थिंक इट्स ओके नाउ। सो हुण आपां जो करन जा रहे हाँ वो है टेंसेस कि जो ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 4 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਮਾਰਕ them ਅਪ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ, ਔਰ ਇਧਰ ਆਪਾਂ 4 ਕਾਲਮ ਇੱਧਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰਟ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ 'ਚ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਡੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ ਜਾਂ ਨਾउन ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਨਾउन ਠੀਕ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ ਜਾਂ ਨਾउन्स ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾउन्स, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਸਿੰਪਲ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਨਾउन ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਔਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ ਜਾਂ ਨਾउन्स ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂ ਨਾਟ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस नु यूज करते हैं। मतलब सिंगुलर दे नाल डज लग जाता है और प्लूरल दे नाल आपां डू लगा दिंदे हां। ओके, जे अपने कोल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हुंदे ने और अपने को सिंगुलर नाउन या प्रनाउन आंदा है ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 10 वर्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਆਏਗਾ और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट। और जे अपने को आए, वे, यू, दे या नाउन्स आ जाते ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਫਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਡੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ मतलब जो कंटिन्यू है, प्रेजेंट सिंपल जिहड़ा टेंस है उसनू आपां यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन दे लई कि या कोई फैक्ट होवे, कोई सच्चाई होवे कि डेली काम हुंदा है या रूटीन दे विच काम हुंदा है या 15 डेज बाद रेगुलरली काम हो रहा है कि इस तरह दे जदों कोई आपां ने स्टेटमेंट कहनी होवे उदों आपां प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, राइट। और जिहड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसनू आपां उत्थे यूज़ करते हैं जदों आपां ने दसना है कि जदों आपां ये गल कह रहे हैं वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द इशू, अबाउट द वर्क, अबाउट द एक्शन, दैन दैट एक्शन इज बीइंग हैपेंड। वो काम जिहड़ा है वो हो रहा है, ठीक है, उदों आपां यूज़ करते हैं। हुण मैं इन्हां नूं नहीं मैं इरेज कर रही क्योंकि यही चीज़ां अपने कोल आउणगीआं। आई एम इरेजिंग जस्ट दीज थिंग्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे विच अपने कोल एंड दे विच की आंदा सीगा, रहा है, रही है, रहे हैं। भी मैं काम कर रही हाँ, मैं पढ़ा रही हाँ, मैं खाना बना रही हाँ, वो खेल रहे हैं। इस तरह के जिहड़े सेंटेंसेस सीगे उन्हां नूं आपां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे अंडर लैके आंदे आ। और इहदे नाल आपां की लगाने आ जदों ही शी इट या सिंगल नाउन हुंदा है तां इहदे नाल आपां लगाने आ इज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ठीक है जी। और इत्थे आपां आई नूं छड्ड दिंदे आ क्योंकि आई दे नाल एम ही लगदा हुंदा है। जदों अपने कोल वी, यू, दे या होर नाउन्स हुंदे ने, कोई डबल नेम आ जांदे ने तां इन्हां दे नाल आपां लगांदे आ आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, राइट। और जे अपने कोल आए आ जांदा हैगा, आए दे नाल एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ਇਹ यूज करते हैं आपां, राइट। और जे ये पॉजिटिव सेंटेंसेस च हो गया। जे अपने कोल नेगेटिव सेंटेंसेस आंदे ने तां जे अपने कोल सिंगुलर है तां फिर इहदे नाल इज नॉट, इज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing यूज हुंदा है। इत्थों आए आपां छड्ड दिंदे आ, फिर अपने कोल प्लूरल प्रोनाउन और नाउन्स रह गए। इहदे नाल आपां यूज करते हैं आर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, राइट। और आए आ जांदा है अपने कोल, आए दे नाल यूज हुंदा है एम नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो इत्थे इज सेंटेंस दे अगे आ जाएगा कि फिर अपने कोल आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, वर्ब दे नाल तुसी फिर वही ing लगाओगे नाल। इत्थों जे आपां आई छड्ड दईए, we, you, they नाउन इन्हां दे नाल आर। ओके, आर जो है वो that will come in the beginning of the sentence, okay, plus subject, then first form of verb and ing, sign of interrogation। और जी am आ जांदा है, सॉरी I आ जांदा हैगा, I दे नाल am plus subject, first form of verb and ing। इसी तरह की एग्जांपल्स कीतियां सी ना आपां कि इफ यू गो बैक टू द फर्स्ट डेज रिकॉर्डिंग ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ is am are ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ing ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ is am are ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਡੂ ਵਾਚ दैट वीडियो। सो ये हो गया अपने को प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर आ जाता है अपने को प्रेजेंट परफेक्ट। इट्स अ थर्ड टाइप, that was the present continuous was the second one, and third one is present perfect। कि हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो आई है ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। प्रेजेंट परफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਜਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਨੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो अपने को प्लूरल है आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन्स आ जाते हैं, एक या दो तो ज़्यादा नाउन्स आ जाते हैं, फिर आप लगाने हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, ये गल तुसीं याद रखनी है कि इत्थे हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, राइट। जो भी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया उत्थे हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होएगी हैज, हैव दे नाल। जे अपने कोल नेगेटिव सेंटेंसेस आंदे ने तां हैज दे नाल आपां नॉट लगा देंगे, फॉर्म जो है वो थर्ड ही रहेगी। और जे अपने कोल प्लूरल प्रोनाउन आ जाते ने, नाउन्स ज़्यादा आ जाते ने, तां इहदे नाल आपां हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करांगे। और जो इंट्रोगेटिव आ गया तो इस दे नाल आपां हैज सेंटेंस दे बिगनिंग च आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और प्लूरल दे विच हैव सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होएगी। ऑलराइट, इज इट क्लियर? ओके, फिर आ जाता है अपने को फोर्थ टाइप। यस, वन थिंग मोर, जदों आपां ने हुण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिहड़ा है वो यूज कदों करना है, इसनों आपां ने उदों यूज करना है व्हेन वी वांट टू से दैट द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, काम जिहड़ा है वो कंप्लीट हो गया है। कि ये आपां सेकंड डे कीता सीगा विद द पास्ट सिंपल। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਜ਼ ਤੇ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, फिर वो पास्ट सिंपल यूज होएगा। जदों लिया है, लई है, ई है अलग आ जाते ने सेंटेंसेस, तो उत्थे आपां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिहड़ा है यूज करते हाँ। नैक्सट अपने को आंदा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हुण तुसीं इस नाम तो देखोगे कि ये नाम जिहड़ा है इट्स ए कंबीनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, कंबीनेशन ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टाइप। परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट किवें है ते कॉन्टिन्यूअस किवें है? परफेक्ट इस सेंस च है कि पिछे किते शुरू होया सी, पास्ट दे विच किते काम जिहड़ा है वो शुरू होया। कॉन्टिन्यूअस इस सेंस दे विच है कि वो हले भी चल रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग तो वो काम जिहड़ा है वो हले भी चल रहा है। जे तुसीं इसनूं होर डिटेल दे विच देखना चाहते हो तो ये सारे टेंसेस दियां वीडियोज़ जिहड़ियां ने ये चैनल ते पईयां ने टेंपल ऑफ इंग्लिश लर्निंग,
अलग अलग वीडियोज़ ने सारियां प्रेजेंट सिंपल दियां, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट सिंपल, सब दियां वीडियोज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। यू कैन गो टू दोज वीडियोज़ आल्सो। ओके, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ यूज़ करना है, just a little change, and what is that, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ यूज़ करोगे has been फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। ओके, और ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा, ये ਆਪਾਂ थर्ड डे ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ टाइम नाल दिता होया। when you have been given the time कि काम ਜਿਹੜਾ है कि मैं 2 घंटे तो काम कर रही हाँ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम मेंशन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, टाइम ਦਿੱਤਾ होया, फिर ਤੁਸੀਂ ये टेंस ਜਿਹੜਾ है यूज करना है। याद आ गया ना कि he has been working, okay, नाल ing लगाता, नाल तुसी टाइम लगा दोगे since morning और whatever it is। okay, ये सिंगुलर नाल हो गया has been, और जे प्लूरल दी गल करते हैं तो have been फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing आ जाएगा, और जे नेगेटिव दी गल करते हैं फिर अपने को has not been फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing। ओके, और जे इत्थे प्लूरल दे नाल नेगेटिव दी गल करते हैं फिर इहदे नाल have not been फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing। ओके, और जे इंट्रोगेटिव दी गल करते हैं तो हैज अगे आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाऊगा, फिर इत्थे बीन आ जाऊगा, has he been, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing आ जाएगा। okay, और फिर जे ये प्लूरल दे विच इंट्रोगेटिव आ जाता है तो हैव सब्जेक्ट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing। सो उत्थे यूज करना हैगा जिथे आपां नूं टाइम दिता होवे, काम जिहड़ा है पास्ट च किते स्टार्ट होया है पर वो हले भी कंटिन्यू है। राइट, क्लियर होगी गल ये? ओके, हुण आपां चलदे हां पास्ट टेंस ते। सो फर्स्ट काइंड है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल दे विच तुसी कुछ भी है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, तुसी सारियां दे नाल की यूज करना है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सारियां दे नाल, चाहे वो सिंगुलर आ जाता है, चाहे वो प्लूरल आ जाता है, चाहे वो सिंगल नेम है या वो डबल नेम ने, कुछ भी है चाहे वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ पास्ट सिंपल ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਠ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਡ ਨਾਟ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਡ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਿਡ, ਤੇ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
कि मैं एग्जाम्पल्स ਤਾਂ नहीं करवा रही क्योंकि ਆਪਾਂ बहुत डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम्पल्स ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ याद ही ਹੋਣਗੀਆਂ। सो ਇੱਥੇ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ डेट सब्जेक्ट फिर वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म यूज ਹੁੰਦੀ है। ओके, फिर आ जाता है अपने को पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे विच जस्ट लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपां इज एम आर यूज कीता सी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे विच अपने को वाज वर यूज हुंदा है। जे सिंगुलर है तां आपां वाज वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ते उस दे नाल आईएनजी यूज कर देंगे, और जे प्लूरल है तो इस दे नाल वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी यूज कर देंगे। जे अपने को नेगेटिव सेंटेंसेस ने तो वाज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी यूज हो जाएगा। जे प्लूरल है अपने को तो वर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होएगा। और जे अपने को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है सिंगुलर दे विच वाज अगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट काम करने वाला, फिर अपने को वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी। सिमिलरली प्लूरल दे विच वर सब्जेक्ट आएगा और फर्स्ट फॉर्म दे नाल आईएनजी यूज होएगा। क्लियर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दे नाल तुसी कंपेयर करो इसनों, तो इत्थे इज लगाया सी आपां, इत्थे आर लगाया सी कि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ते आईएनजी होगी सी। सो ऑब्वियस है जदों आपां प्रेजेंट दी गल कर रहे भी मैं काम कर रही हाँ कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही सी, पास्ट चला गया कि आई वाज वर्किंग। ओके, थर्ड आंदा है अपने कोल पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट दी आपां एग्जांपल्स जेहड़ियां ने नहीं कीतियां। क्यों नहीं कीतियां? क्योंकि ये टेंस जिहड़ा है आपां बहुत ही घट यूज करते हैं, ये थोड़ा जा अपने कोल टाइम भी घट सीगा ते इस करके मैं इसनों छड्डता सी। पर हुण आपां इहदे च यूज की करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस दे विच, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जे अपने को नेगेटिव है तो इत्थे लग जाता है had not प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, और जे इंट्रोगेटिव है had आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर उस तो बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। राइट, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ ਹੈਜ਼, ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ ਹੈਵ ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ हैज़ हैव ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ हैड लगा रहे हैं क्योंकि ये पास्ट की गल हो रही है। ओके, नेक्स्ट टाइप है अपने को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ओके, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ यूज करोगे had been प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। ओके, और नेगेटिव दे विच had not been फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, और जो इंट्रोगेटिव है had सब्जेक्ट प्लस been प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सो इत्थे had been फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ते ing। प्रेजेंट नाल तुसी कंपेयर करो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उत्थे हैज बीन हैव बीन लगाया सी, ਉਹੀ चीज़ ਜਿਹੜੀ पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? हैड बन गई, हैड बीन। बाकी सारा कुछ उवें ही है, देयर इज नो चेंज, सिर्फ प्रेजेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ।
ओके हुण आपां चलदे हां फ्यूचर टेंस। फर्स्ट है अपने को फ्यूचर सिंपल। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ, ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ, ਫਿਊਚਰ ਸਿੰਪਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਟੈਂਸ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਔਰ ਵੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਲ ਨਾउन ਹੋਵੇ, ਪਲੂਰਲ ਨਾउन ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਔਰ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟ, ਓਕੇ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਹੈ ਇਹ, ਵਾਟ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਦਾ, ਓਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਚ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਡੂ ਨਾਟ, ਡਜ਼ ਨਾਟ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਡਿਡ ਨਾਟ, ਫਿਊਚਰ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਜਾਂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ। सेकेंड आता है अपने को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दे विच आपां की लगाने आ, विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उस दे नाल आईएनजी। ओके ये भी आपां कल कीता सी, सारे कंपेयर कीते सीगे सिंपल फ्यूचर के ते ओदे नाल कॉन्टिन्यूस दे नाल। इत्थे भी आपां की यूज करांगे, बी, विल नॉट बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और इत्थे आपां की यूज करांगे विल, सब्जेक्ट तो बाद बी आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। कुछ भी है चाहे उथे सिंगुलर है या प्लूरल है, यही हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हां नूं आपां कहने हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होंगे ने। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ते उस दे नाल आईएनजी यूज होएगा, राइट। थर्ड है अपने कोल फ्यूचर परफेक्ट। ये टेंस भी आपां नहीं किया क्योंकि अपने को टाइम की शॉर्टेज सीगी बहुत, नहीं तो ये टेंस भी आपां ने करना सी। मैं तुहानूं रूल दस दिंदी हां, एक भी आपां घट यूज करते हैं, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड लेस। ओके हुण इस दे विच आपां की लगाने आ, will have been, will have been, okay, will फ्यूचर वास्ते आ गया, have been परफेक्टली यूज किया गया है, will have been थर्ड फॉर्म ऑफ verb, will have been और उस दे नाल
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे अपने को will not have been, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नॉट है, नॉट तो अपन नाल लगाना ही है, विल नॉट, हैव बीन अपन ने नाल लगाता। और जो इंट्रोगेटिव होएगा तो विल जो है वो आगे आ जाएगा, विल फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। टेंस घट यूज होंदा है, इस करके आपां इस ते ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। फिर आ जाता है अपने को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके बेटा, इतने थोड़ी जी चेंज करो, इथों बीन छड़ दो, इतने आप बीन नहीं यूज करते। विल हैव परफेक्ट दे विच मैं कह रही हूँ थानू, ओके। इतने आप बीन यूज नहीं करांगे, इतने विल हैव ते थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होएगा। बीन जिहड़ा आपां यूज करते हैं वो पैसिव वॉइस च करते हैं, ओके। पैसिव वॉइस जिहड़ा हैगा ओहदे भी आपां एक अलग लैक्चर ओहदे वास्ते चाहिदा हैगा, उस नूं आपां करांगे। और जदों आपां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दी गल करते हैं, ठीक, फिर आपां ओहदे वास्ते लगाने आ विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ओके। और फिर इत्थे नेगेटिव दे विच विल नॉट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और इत्थे उसी तरह ही विल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे विच ये अपना फोर्थ टाइप है। फ्यूचर परफेक्ट दे विच विल हैव लगेगा, ओके। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे विच आपां इहदे नाल बीन लगा के आईएनजी यूज करांगे। इस टेंस नूं भी आपां बहुत घट यूज करते हैं। सो हुण तुसीं जदों सारे टेंस तुहाडे कोल हो गए तो तुसीं एक चार्ट बना लेना हैगा बेटा, ठीक। चार्ट किस तरह बनाओगे ताकि वो तुसीं कंपेयर भी कर सको और तुसीं इसनूं याद भी रख सको। और जदों तुहानूं लग रहा है भी तुहानूं एक रिवीजन की लोड़ है तो तुसीं वो चार्ट देख के ही तुहाडा सारा जिहड़ा है रिवाइज हो जाए, ओके। पर इत्थे तुसीं करोगे सिंपल, ओके। फिर तुसीं करोगे कॉन्टिन्यूअस, फिर इत्थे तुसीं करोगे परफेक्ट, इत्थे तुसीं कर दोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी। इत्थे आ गई एक लाइन, इत्थों तुसीं करोगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज जो कॉलम बनया तुहाडे कोल, इत्थे तुसीं सिंपल दे विच की यूज करना है, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ओके। ये लिख लोगे डज नॉट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। और जे तुहानूं थोड़ा जिहा होर हो करना है तो तुसीं इत्थे अपनी एग्जांपल भी दे सकते हो। कॉन्टिन्यूअस दे विच इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ठीक। इत्थे नेगेटिव दे विच तुसीं नॉट लगा देना। ਇਹਦਾ ਇਹ मीनिंग ਤੁਸੀਂ अपने आप जनरेट कर सकते हो, ਜਾਂ कोई भी सिंबल लगा लो कि आ सारे वर्ड्स ਇੱਥੇ आ जाएंगे, ठीक।
परफेक्ट दे विच हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर बाकी इन्हां दे नाल नॉट लग जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे विच हैज बीन have been फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing बाकी इन्हां दे नाल नॉट लग जाएगा। राइट पास्ट दे विच सेकंड फॉर्म और नेगेटिव दे विच डिड नॉट दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस दे विच was were फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing और नॉट नेगेटिव दे विच जब आप करांगे हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नेगेटिव दे विच हैड नॉट हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing बाकी इन्हां दे नाल नॉट लग जाएगा। फ्यूचर विल शैल तुसी छੱਡ सकते हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इन्हां दे नाल नॉट आ जाएगा। विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing और ये आ जाएगा विल नॉट बी। ठीक है विल नॉट बी और परफेक्ट दे विच आ जाएगा अपने को विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव दे विच आ जाएगा विल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे विच आ जाएगा विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing और नेगेटिव दे विच आ जाएगा विल नॉट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing। जे तुहाडे कोल स्पेस है तो तुसी नाल नाल इन्हां दी एक एक एग्जाम्पल दे सकते हो फिर छोटी छोटी एग्जाम्पल दे दो ताकि वो तुहानूं जिहड़ा है वो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। राइट क्लीयर है ये गल तुहानूं? ये पूरा तुहाडा चार्ट जिहड़ा है इस जो इंग्लिश दे सेंटेंसेस ने ग्रामर है या जो तुहाडी टेक्स्ट है तुहाडे लैसन्स ने या कोई आर्टिकल है या एसे है या लैटर है कुछ भी है इंग्लिश दे विच वो सारा इन्हां टेंस ते ही बेस्ड हुंदा है। बेसिक चीज़ ये तुहाडी है जे तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई और ये तुहाडे टिप्स ते है तो आई थिंक कि तुसी इंग्लिश दे विच बहुत अगे निकल सकते हो। राइट इन्नी गल क्लीयर है। थोड़ा जा पार्ट हुण अपना जिहड़ा रहिंदा है इन्हां टेंसेस तो इलावा कुछ सेंटेंस इहो जे हुंदे ने जिहड़े कि इन्हां दे विच कवर नहीं हुंदे। जिस तरह मैं तुहानूं पहलां ये दस्सिया सीगा कि जदों भी आपां ने कोई सेंटेंस बनाना है तो उहदे लई दो चीज़ां जरूरी ने। एक तो ये है कि काम करने वाला कौन है दूजा ये है भी काम की हो रहा है। जदों आपां ने अपने कोर्स की बिगनिंग की सी सो वी टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स कि हु इज़ द पर्सन हु इज़ डूइंग द वर्क जिसनों आपां ने कहा सी काम करने वाला या जिसनों आपां अपनी लैंग्वेज इंग्लिश दे विच कहने सब्जैक्ट। हु इज़ द सब्जैक्ट एंड वट इज़ द वर्क बीइंग डन काम की हो रहा है एक्शन की हो रहा है। जदों ये दो चीज़ां साडे कोल हुंदियां ने तां वो सेंटेंस बनदा है। पर हुण मैं ये कहनी हाँ कि कुछ सेंटेंसिस इहो ਜਿਹੇ भी हुंदे ने जिहदे विच काम करने वाला नहीं हुंदा काम करने वाला नहीं हुंदा काम हुंदा है काम की करना है वर्क की है काम की है तो की करना है। हुण जिस तरह आपां कह दिंने आ अपना दरवाजा बंद करो ओके आपां कह दिंने दरवाजा बंद करो। हुण इस सेंटेंस दे विच अपने कोल कोई भी काम करने वाला नहीं है कि सिर्फ ये कहा जा रहा है दरवाजा बंद करो काम की है बंद करना
की बंद करना है? दरवाजा। ठीक है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲੋਜ਼। ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਲੋਜ਼। ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡੋਰ। close the door। सिंपल। कह रहे हैं घंटी बजाओ। घंटी बजाओ। बजाओ रिंग। रिंग व्हाट? रिंग द बेल। बड़े सिंपल जो सेंटेंस होंगे ने और बहुत ही ईजी होंगे ने। फिर जो वर्ब होंगे इन्हां नूं आपां कहने हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। We call them imperative sentences। Imperative sentences are those sentences which start with verb। बंद करना, बजाना, ये सारे की ने वर्ब ने। ते जेड़े sentences verb नाल start होंदे ने उन्हां नूं आपां कहने आ imperative sentences। पंखा चलाओ। पंखा चलाओ। चलाओ switch on। Switch on। Switch on what? Switch on the fan। Switch on the fan। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸ਼ੋਰ ਨਾ मचाओ। शोर ना मचाओ। फिर उहदे वास्ते तुसी की यूज करते हो? डोंट। डोंट डोंट जिहड़ा है ये डू नॉट कह लो तुसी। डोंट कंट्रैक्चुअल फॉर्म है कि डू नॉट। फिर आप कहते हैं ना मचाओ। ना वास्ते अपन ने की लगाता? डू नॉट। शोर मचाना मेक नॉइज। डू नॉट कि उत्थे अपन ने सिंपल किया सीगा कि क्लोज द डोर। क्लोज द डोर वो सीगा भी काम कर दो। हुण आपां कह रहे हैं भी ना करो। ना करो डू नॉट मेक नॉइज। जी हुण आपां कह सी चलो क्लोज द डोर, हुण आपां कह दीए दरवाजा बंद ना करो। दरवाजा बंद ना करो। डू नॉट क्लोज द डोर। सिंपल। तुसी उहदे नाल डू नॉट जिहड़ा है उस दे अगे रख देना हैगा। बाहर ना जाओ। डू नॉट गो outside। You do not go out। कल तुसी out भी लिख सकते हो, that would be better। कि do not go out। बाहर ना जाओ। जंक फूड ना खाओ। मैंने नहीं पता भी जंक फूड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। जंक फूड ना खाओ। don't do not eat junk food। do not eat junk food। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਟ ਅਸ। ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਲੈਟ ਅਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈਟ ਅਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਵਰਬ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾ, ਡੂ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਕੀ? ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ this work. Let us do this work. आओ खेडिए, आओ खेडिए। Let us play. So simple. Let us play. Okay, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ let us ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ let apostrophe s ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। let us, let's, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? let's play। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ let me, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ, let me sit here, let me sit here, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। Okay. ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ आओ खाना बाहर खाइए। आओ आओ वर्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਖਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਖਾਣੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? let us go out for dinner। डिनर है या लंच है, whatever it is, स्नैक्स है, कुछ भी है। let us go out for dinner। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? let us dine, let us dine out, let us dine out। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ let us go out for dinner। dinner ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾउन ਬਣਾਤਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾउन ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾउन ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। let us go out for dinner। ਹੁਣ dinner ਇੱਥੇ ਨਾउन ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? verb ਬਣਾਤਾ ਇੱਥੇ let us dine out। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आओ खाना बनाइए, खाना बनाइए, सिंपल, खाना बनाइए। let us cook, let us cook। okay, मैनू किताब खोलन ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ
खोलन दियो। सो सिंपल, let me open the book, let me open the book। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ me ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ us ਆ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਹਿਮ, ਹਿਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬॉय ਹੈ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਗੋ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਗੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਓਵਰ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ then you can ask। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। if you want to ask anything। ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ the 6th day, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਦ ਕਲਾਸ, do join in time। till then, goodbye and happy learning।